હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે શરૂ કરીએ છીએ વિમ એડિટરની અંદર ડોક્યુમેન્ટની અંદર કોઈ ફાઇલ બનાવેલી જ હોય અને એમની અંદર સુધારા વધારા કરવા હોય એટલે કે એડિટિંગ કરવું હોય તો કઈ રીતના આપણે એડિટિંગ કરી શકીએ છીએ. તો એડિટિંગ કરવા માટે આપણે એક ગાંધીજી વિશેની અગાઉના વિડીયો લેક્ચરની અંદર એક ફાઇલ બનાવેલી છે જેમનું નામ આપણે XYZ કંઈ પણ આપેલું હોય તો એ ફાઇલની અંદર હવે પછીથી એટલે કે એક વખત ફાઇલ બનાવી નાખેલી છે અને ફરી વખત એમાં કંઈ સુધારા વધારા કે એડિટિંગ કરવું હોય તો કઈ રીતના એ ફાઇલ પર એડિટિંગ કરી શકીએ. એટલે કે કોઈ નવી માહિતી ઉમેરવી છે અથવા તો જે માહિતી એમાં ટાઈપ કરેલી છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવા છે તો એમને આપણે એડિટિંગ તરીકે ઓળખીશું. એટલે કે સુધારા વધારા કરવા એને એડિટ કરવું કહેવાય. તો અહીંયા આપણી પાસે આટલું ટાઈપ કરેલું હતું ગાંધીજી વિશેની ફાઇલમાં અને હવે એમાં આપણે નવું એડ કરવું છે. તો આપણે આઈ અથવા તો એ પ્રેસ કરી અને ઇન્સર્ટ મોડમાં જઈશું. એટલે કે કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ પર VI અને VI પછી એક સ્પેસ છોડી અને આપણી ગાંધીજી વિશેની માહિતી ટાઈપ કરેલી ફાઇલનું જે નામ આપેલું હોય તે નામ ટાઈપ કરવાનું છે. એટલે કે VI સ્પેસ ગાંધીજી અને પછી એન્ટર આપવાનું છે એટલે ફાઇલ ખુલી જશે. એટલે આ રીતના ફાઇલ તમને જોવા મળશે. હવે એમાં તમારે જે વધારાનું ટાઈપ કરવાનું છે એ ટાઈપ કરવા માટે ઇન્સર્ટ મોડમાં જઈ અને માની લો કે તમે આ પહેલી 4 લાઈન કે 5 લાઈન ટાઈપ કરેલી છે અને પછી આ લિટલ ગાંધી ત્યાંથી આગળ તમારે ટાઈપ કરવું છે તો કર્સરને અહીંયા જ્યાં લિટલનો L દેખાય છે ત્યાં તમારે ટાઈપ કરવું હોય તો કર્સરને આ સ્થાન ઉપર લાવવું પડશે. જે આપણે અગાઉના વિડીયો લેક્ચરની અંદર LKJH નો ઉપયોગ કરી એરો કીની જેમ જ એ 4 કી વર્ક કરે છે. તો એ રીતે તમે કર્સરને અપ ડાઉન મૂવ કરાવી અને યોગ્ય સ્થાન પર કર્સર લાવી અને હવે ઇન્સર્ટ મોડમાં જઈ એ અથવા આઈ પ્રેસ કરી અને તમે નવું લખાણ જે ઉમેરવા માંગો છો એ તમે ટાઈપ કરી શકો છો. અને ટાઈપ કર્યા બાદ :WQ પ્રેસ કરી અને ફાઇલ સેવ કરીને બહાર નીકળી શકો છો. :WQ એટલે કે રાઇટ એન્ડ ક્વાઇટ અને એમાં ડેટા સેવ થઈ જશે અને તમે બહાર નીકળી જશો. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા પ્રકારના સુધારા વધારા કરી શકાય છે. તો એ માટે અહીંયા આપણને ઘણા બધા કમાન્ડની યાદી આપેલી છે. દરેક કમાન્ડનું કોઈ ચોક્કસ કાર્ય છે. એ ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે અહીંયા પહેલું આપેલું છે U, तो कि अंतिम सुधारो रद्द करवा माटे, जस्ट लाइक अंडू. जिस तरह से आप अंडू यानी कि ये काम मुझे नहीं करना था और हो गया है तो उसको मिटाने के लिए आप अंडू यानी कि स्मॉल यू का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा है कैपिटल यू. तो लाइन में जो आपने सुधारा किया है यानी कि एडिटिंग किया है उसको कैंसल करने के लिए इस लाइन पर जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है उसको कैंसल करने के लिए कैपिटल यू. उसके बाद है डबल डी. तो पूरी एक लाइन आपको मिटानी है तो उसके लिए डबल डी आपको प्रेस करना पड़ेगा. लेकिन ये सारे कमांड मोड में रहकर आप यूज कर सकते हो. इंसर्ट मोड में रह के ये कमांड नहीं टाइप करना है. अगर आपने इंसर्ट आपकी फाइल का इंसर्ट मोड है और आपने ये कमांड टाइप किया तो ये है आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर, जैसे गांधी जी का पैराग्राफ आपने टाइप किया है उस तरह से उसी जगह पर टाइप होगा, ना कि कंप्यूटर कमांड के अर्थ में लेगा. तो इंसर्ट मोड में रह के ये काम नहीं करना है, आपको कमांड मोड में रह के ये सारे कमांड देने हैं. फिर NDD, एन यानी कि आपको नंबर टाइप करना पड़ेगा. मुझे 3 लाइनें डिलीट करनी है तो एक बार 3 टाइप करो और 2 बार DD. ठीक है. तो N यानी कि नंबर, अगर आपको 2 लाइनें मिटानी है तो 2DD, अगर 5 लाइन आपको डिलीट करनी है तो 5DD यानी कि N मतलब नंबर ऑफ लाइन. उसके बाद है कैपिटल D. कर्सर के बाद
पूरी जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, उस सारे टेक्स्ट लाइन को मिटाने के लिए इसका कैपिटल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस लाइन पर आपका कर्सर है वो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, मतलब कि कर्सर जहां पर है वहां से लाइन पूरी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है कैपिटल सी। तो कैपिटल सी का मतलब है जहां पर आपका कर्सर है वहां से पूरा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिलीट कर देगा और नया जो आप इंसर्ट करना चाहते हो वो ऐड हो जाएगा जब तक आप एस्केप की नहीं प्रेस करोगे तब तक। उसके बाद है डी डब्ल्यू। अगर आपको कोई एक ही वर्ड रिमूव करना है तो उसके लिए होगा डी डब्ल्यू। फिर एन डी डब्ल्यू, नंबर ऑफ वर्ड, कितने वर्ड आप रिमूव करना चाहते हो तो एन डी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू, अगर कोई वर्ड चेंज करना चाहते हो तो सी डब्ल्यू। एक्स का मतलब है कोई एक लेटर, जिस स्थान पर आपका कर्सर है, जिस कैरेक्टर के ऊपर आपका कर्सर है, उस एक कैरेक्टर को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर मिटाएगा, कैपिटल एक्स। कर्सर जहां पर है उससे पहला वाला लेटर दूर करने के लिए, जिस तरह से आप बैकस्पेस का इस्तेमाल करते हो कि कर्सर की पोजीशन जहां से है वहां से लेफ्ट हैंड साइड का कैरेक्टर मिटा सकते हैं, उसी तरह से कैपिटल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर, कोई एक किसी एक लेटर को चेंज करने के लिए आर। कर्सर के बाद वाला यानी कि ओवरराइट जिस तरह से करते हैं उसी तरह से कर्सर से राइट वाला कैरेक्टर मिटाने के लिए और उसको चेंज करके दूसरा आप ओवरराइट कर सकते हो, एक लेटर मिटा के। आर मतलब रिप्लेस। स्मॉल एस, कर्सर के नीचे एक कैरेक्टर को बदल के एडिटिंग को चालू रखने के लिए। कैपिटल एस, पूरी लाइन मिटा के उसकी जगह पे पूरी लाइन मिटा के उसकी जगह पे शुरू में कोई नई लाइन ऐड करनी है तो उसके लिए कैपिटल एस। फिर ये टिल्ट, उस अक्षर का जो कैरेक्टर है उसका केस चेंज करने के लिए, मतलब कैपिटल है तो स्मॉल में करना तो केस चेंज इसके लिए है। और डॉट, तो लास्ट में जो दिया हुआ कमांड है उसको रिपीट करने के लिए डॉट। फिर यहां पर है वाई वाई, तो कर्सर जिस लाइन पर है वर्तमान लाइन पर उसकी नकल बफर में करने के लिए एन वाई वाई। कर्सर वर्तमान स्थान के ऊपर नंबर ऑफ लाइन को बफर में कॉपी करने के लिए। और पी, बफर में दी हुई स्थान पर कर्सर जिस स्थान पर है उस स्थान के नीचे जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के लिए। तो इतने सारे जो कमांड थे वो कुछ ना कुछ एडिटिंग के लिए, कर्सर को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, कोई एक वर्ड को मिटाना, पूरे एक कैरेक्टर को मिटाना। तो इस तरह से ये पूरा जो टेबल है वो टेबल के सारे कमांड्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि मुझे इस टाइप का चेंजेस करना है तो हम उसके बारे में ये कमांड जानते होंगे तो ही हम काम कर सकते हैं। इसके बाद वाले जो कोष्टक है
सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।